السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ سڑکوں کی خستہ حالت کا نوٹ لینے اور کانٹریکٹرز کے کاموں میں پیش رفت کا جائزہ لینے کمشنر بلدیہ کو GHMC کی ہدایت۔ چھاؤنی نادر علی بیگ میں اجناس کے گودام پر سول سپلائز ویجیلنس ٹیم کا دھاوا، اجناس کی غیر قانونی منتقلی کا انکشاف۔ کراچی بیکری موزم جائی مارکیٹ پر محکمہ اوزان و پیمائش کے عہدیداروں کا دھاوا، مقدمہ درج۔ اور جعلی دستاویزات کے ذریعے گولڈ لون حاصل کرنے والے فائنانس کمپنی کے 3 عہدیدار گرفتار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کا جنرل باڈی اجلاس پیر کے دن معمول کے مطابق چلا۔ اجلاس میں 2 قراردادیں پیش کی گئیں۔ کمشنر بلدیہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ شہر میں سڑکوں کی خراب حالت کا نوٹ لیں اور کانٹریکٹرز کو دیے گئے کاموں میں پیش رفت کا جائزہ بلدی حلقہ واری اساس پر لیں اور متعلقہ عوامی نمائندوں سے مشاورت کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ کام کی پیش رفت سے متعلق تفصیلات اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں پیش کرتے رہیں۔ واضح رہے کہ ہفتے کے دن کارپوریٹرز کی جواب طلبی پر کمشنر اور ان کا ماتحت عملہ اجلاس سے بائیکاٹ کر کے چلا گیا تھا۔ کانگریس کے رکن راجیہ سبھا ہنمنت راؤ نے اس اقدام پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ کمشنر عوامی خدمت گزار ہوتا ہے جبکہ کارپوریٹرز عوامی نمائندے ہوتے ہیں۔ کمشنر کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اس موقع پر خراب سڑکوں کی جنگی پیمانے پر درستگی کے لیے ہر وارڈ کے لیے 50 لاکھ روپے مختص کرنے سے بھی اتفاق کیا گیا۔ کمشنر بلدیہ سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ آبرسانی یونٹس کی ضرورتوں کا بھی علاقہ واری اساس پر سروے کریں۔ متفقہ طور پر یہ بھی قرارداد پیش کی گئی کہ GHMC حدود میں آبرسانی کی حالت کو بہتر بنایا جائے۔ اس کے لیے کمشنر کو چاہیے کہ وہ سینیٹری ورکرز کی تعداد میں جہاں کہیں ضرورت ہو اضافہ کرے۔ In every standing committee. It has also resolved unanimously to allot 50 lakh rupees for each ward for restoration of bad roads of conditions on war footing basis. Review of the works to be placed in every standing committee meeting and the implementation of it should also be placed. Any other policy has to be placed in the standing committee so as to discuss and take necessary action on it. Thank you. بلدیہ کے جنرل باڈی اجلاس میں مہیلا بھون کے مسئلے پر کانگریس اور TDP اراکین بلدیہ میں سخت مباحث دیکھے گئے۔ TDP فلور لیڈر سرینیواس ریڈی کے سخت الفاظ کی وجہ سے سابق میئر کارتیکا ریڈی روتے ہوئے اجلاس سے باہر نکل گئیں۔ گڑبڑ اس وقت شروع ہوئی جب کارتیکا ریڈی نے بتایا کہ انہوں نے میئر کی حیثیت سے اپنی میعاد کے دوران بلدی وارڈز کی مناسبت سے 152 مہیلا بھونز کی تعمیر کو منظوری دی تھی، جس پر TDP فلور لیڈر نے مداخلت کی اور بتایا کہ سرکل وائز صرف 18 مہیلا بھونز کو منظوری دی گئی تھی۔ ان کے سخت الفاظ پر کارتیکا ریڈی کے آنسو نکل گئے اور وہ باہر نکل گئیں۔ بعد میں میئر ماجد حسین کے اجلاس میں مفاہمت کروائی گئی۔ میڈیا پلیز چلیے۔ ریاستی محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کو مزید فعال اور متحرک بنانے کے لیے 22 اضلاع کے DPROs کو عصری سہولتوں سے آراستہ گاڑیاں فراہم کی گئی ہیں۔ ریاستی وزیر اطلاعات DK ارونا نے پیر کو جھنڈی دکھا کر 22 گاڑیوں کو روانہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ محکمہ اطلاعات کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے عصری آلات سے لیس گاڑیاں عہدیداروں کو فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ محکمے کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ محکمے کو فعال بنانے کے لیے
तमाम मुमकिना इक़दामात किए जा रहे हैं। ఈరోజు ఐఎన్పిఆర్ డిపార్ట్మెంట్లో పెద్ద ఎత్తున మరి 23 జిల్లాలకు కూడా డిపిఆర్ఓస్కి 23 వెహికల్స్ని 1,70,00,000తో పర్చేజ్ చేసి ప్రతి జిల్లాకు కూడా ఈరోజు వెహికల్ని పంపించడం జరిగింది. ఈ వెహికల్తో పాటుగా ప్రతి వెహికల్లో కూడా డిపిఆర్ఓస్ అక్కడ ఉన్నటువంటి డిపిఆర్ఓస్కి వెహికల్తో పాటుగా వాళ్ళకి అవసరమైనటువంటి డిజిటల్ కెమెరాస్, ట్యాబ్లెట్ పీసీ విత్ ఇంటర్నెట్ ఫోన్ కనెక్షన్తో కూడా అదేవిధంగా కంప్యూటర్స్, ఇవన్నీ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఈరోజు ఆ వెహికల్లో కల్పించడం జరుగుతూ ఉంది. सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के खिलाफ मनसूबाबंद फसाद और मुस्लिम खवातीन की इसमत रेज़ी के सैकड़ों वाक़यात पर शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से सवाल किया है कि क्या यही सेक्युलरिज़म है और क्या यही कानून की बालादस्ती है। मल्लेपल्ली में जलसे हालात हाज़रा से खिताब करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि मुल्क में मुसलमानों पर जब भी भयानक मज़ालिम ढाए जाते हैं तो मजलिस आवाज़ उठाती है और शायद इसी वजह से मजलिस को फ़िरक़ा परस्त कहा जाता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या नाइंसाफ़ियों पर एहतजाज करना फ़िरक़ा परस्ती है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस यकीनन गरीब मुसलमानों की आवाज़ है और उसके साथ साथ वो एक सेकुलर जमात भी है। मुजफ्फरनगर के भयानक फसादात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ मुसलमानों के साथ पेश आए वाक़यात एक खौलनाक दास्तान है। यहाँ तक कि आज भी 25,000 मुसलमान मुजफ्फरनगर के कैंप्स में सर्दी से ठिठर कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तेलुगु देशम को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि ये वो जमात है जिसने गुजरात में मुसलमानों की नस्ल कुशी के बावजूद बीजेपी के साथ सियासी ताल्लुकात कायम रखे और आज चंद्रबाबू नायडू इख्तिदार के लिए फ़िरक़ा परस्तों से हाथ मिलाकर मसरत का इजहार कर रहे हैं। तेलुगु देशम के सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले लीडर पी केशव ने कहा है कि रियासत की तकसीम के मामले पर दस्तूर के ख़िलाफ़ अमल किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए पी केशव ने सवाल किया कि रियासत के अहदेदारों की किन सिफारिशात को इस अमल का हिस्सा बनाया गया है। वज़ीर आला को तनकीद का निशाना बनाते हुए पी केशव ने कहा कि सिर्फ मीडिया के रूबरू किरण कुमार रेड्डी ख़ुद को मुत्तहिदा आंध्रा के कट्टर हामी कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक मौका परस्त लीडर हैं। पी केशव ने हुकूमत से तेलंगाना मसवदा बिल पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का मुतालबा किया। तेलुगु देशम लीडर रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि भरोसा करने वालों को धोखा देना टीआरएस सरबराह केसीआर की आदत है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर खुद नहीं चाहते कि तेलंगाना की तश्कील हो। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम ने जहां केसीआर को इज्जत बख्शी, वहीं उन्होंने इसी अवाम की तौहीन की है। रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि आखिर क्यों टीआरएस का कांग्रेस में इंजमाम अब तक नहीं हुआ। साबिक वजीर शंकर राव ने राहुल गांधी को मुल्क के तमाम तबकात बिलखुसूस नौजवानों की उम्मीद करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के समाज का हर तबका इसी उम्मीद के साथ राहुल गांधी की तरफ देख रहा है और वो उन्हें वजीर आज़म के तौर पर देखना चाहता है। बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए शंकर राव ने कहा कि बीजेपी को दलितों से कोई हमदर्दी नहीं है। पार्टी के साबिक सदर बंगारू लक्ष्मण को महज दलित होने की वजह से दूर कर दिया गया, जबकि वेंकैया नायडू दलितों की अराजी पर जबरन कब्जे में मुलविस रहे हैं। तेलुगु देशम लीडर नरसी रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में तेलुगु देशम का मजबूत मौक़िफ़ है। मीडिया से बात करते हुए नरसी रेड्डी ने सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव के मौक़िफ़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में तलबा का जो रोल है उसे केसीआर को नहीं भूलना चाहिए। तेलुगु देशम लीडर ने इंतबाह दिया कि केसीआर तेलुगु देशम को कमज़ोर ना समझें और तेलंगाना में पार्टी की मकबूलियत अब भी बरकरार है और केसीआर की लाख कोशिशों पर भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स की आरटीए की जानिब से इजराई के खिलाफ नंबर प्लेट्स बनाने वाले वर्कर्स ने आरटीए के दफ्तर खैरताबाद के पास एहतजाज किया। एहतजाजी वर्कर्स का कहना था कि आरटीए की जानिब से नंबर प्लेट्स की इजराई की वजह से उनका रोजगार मुतासर हो रहा है और वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं।
एहतजाजी वर्कर्स ने फौरी इन प्लेट्स की इजराई को रोकने का मुतालबा किया। बाद में पुलिस ने एहतजाजी वर्कर्स को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके अवामी मसाइल का जायज़ा लिया। दौरे का आगाज़ मस्जिद मेराज कुरमागुड़ा से किया गया और शांति नगर, छावनी, नादे अली बेग, सुल्तान डेरा, मस्जिद एक मीनार इलाकों का अहाता करके अवाम से उनके मसाइल दरियाफ्त किए गए। इसके अलावा उन्होंने सुल्तान डेरा के इलाके में MLA फंड से तामीर किए जाने वाले एक कम्युनिटी हॉल का भी मुआयना किया। इस मौके पर रुकने बलदिया छावनी डिवीज़न मोहम्मद मुर्तज़ा अली के अलावा दूसरे मौजूद थे। APSRTC राजेंद्र नगर डिपो के मुलाजिमीन की तंजीम मुस्लिम मिनॉरिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से साल 2014 के कैलेंडर की इजराई अमल में आई और डायरी भी बनवाई गई। तंजीम के सदर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इसकी रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर यूनियन के जिम्मेदार भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने गोशा महल पुलिस ग्राउंड पर पुलिस स्पोर्ट्स मीट में हिस्सा लिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि पुलिस ने मुख्तलिफ खिदमात के लिए रेस कोर्स से घोड़े हासिल किए हैं, जिन्हें तिलाया गर्दी, ट्रैफिक कंट्रोल करने के अलावा हड़ताल और एहतजाज के दौरान भी इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रेस कोर्स के 40 घोड़ों में से 29 घोड़ों की हालत ठीक है, माबाकी बीमार हैं। उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया स्पोर्ट्स पुलिस मीट के मौके पर घोड़ों की एक टीम बनाई जाएगी, जिसमें घोड़ों के जरिए मुख्तलिफ करतबों का मुजाहरा भी किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि शहरियों में इस ताल्लुक़ से दिलचस्पी पाई जाती है। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस की अहलिया ममता अनुराग शर्मा, एडिशनल कमिश्नर पुलिस रंजनी कुमार और DCP ईस्ट जोन सत्यनारायण भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद की माउंटेड पुलिस के अंदर 10 नए घोड़े इंट्रोड्यूस किए गए। उसी तरीके से नए स्टेबल्स भी बनाए गए। ये स्टेबल्स जो हैं काफ़ी साइंटिफिक तरीके से डिज़ाइन किए हैं और हमारे एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर अंजनी कुमार साहब ने इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट लेकर के इन्हें बनवाया है। और ये घोड़े भी उन्होंने रेस कोर्सेज से और दूसरे स्टड फार्म से बात करके लिए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके आने से हैदराबाद की माउंटेड पुलिस के परफॉर्मेंस में 4 चांद लगेंगे और हम लोग क्राउड कंट्रोल में, सेरेमोनियल इवेंट्स में और उसी के साथ में हम स्पोर्ट्स इवेंट्स के अंदर भी काफ़ी अच्छा मुलाहिजा कर पाएंगे। इसी तरीके से हम ये भी सोच रहे हैं कि हैदराबाद सिटी पुलिस के अंदर एक पोलो टीम भी तैयार की जाए। चंद्रान गुट्टा फ्लाईओवर के नीचे DCM और ट्रॉली स्टैंड को बर्खास्त करने के काम को कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की मुदाखलत पर रोक दिया गया। मकामी DCM और ट्रॉली ड्राइवर्स के वफद ने दारुस्सलाम पहुंचकर बलदी हुक्काम की कार्रवाई के सिलसिले में नुमाइंदगी की थी। वफद के नुमाइंदे ने बताया कि गुज़िश्ता कई सालों से गाड़ियाँ और ट्रालियाँ यहाँ पार्क की जाती रही हैं। इससे पहले भी बलदी हुक्काम की जानिब से उसे बर्खास्त करने की कोशिश की गई थी, ताहम अकबर ओवैसी की फौरी मुदाखलत से कार्रवाई को रोक दिया गया था। वफद ने अकबर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। शम्सुल मुफस्सिरीन हज़रत सैयद मोहम्मद उमर हुसैनी खलीक रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स शरीफ पीर को कादरी चमन में शुरू हुआ। सज्जादा नशीन मौलाना सैयद हसन इब्राहिम हुसैनी सज्जाद पाशा की ज़ेर निगरानी 3 रोज़ा उर्स शरीफ का चारशंबे को बाद नमाज ज़ोहर इख्तिताम अमल में आएगा। साउथ सेंट्रल रेलवे मुलाजिमीन की मजदूर यूनियन अपने मुतालबात की यकसुई के लिए हड़ताल करेगी। यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राव ने मीडिया को बताया कि यूनियन के देरीना मुतालबात 36 हैं। उन्होंने बताया कि हड़ताल से पहले रेलवे मुलाजिमीन की राय जानने के लिए 20 और 21 दिसंबर को बैलेट का एहतमाम किया गया, जिसमें 99% मुलाजिमीन ने हड़ताल करने की इजाज़त दी। उन्होंने बताया कि हड़ताल की तारीख का ऐलान नई दिल्ली में 15 जनवरी को एक मीटिंग के बाद किया जाएगा।
जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे श्रीवास्तव ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में मुसाफिरों को पहुंचाई जाने वाली मेयारी खिदमत की सताइश की है। उन्होंने मीडिया को बताया कि उनकी अव्वलीन तरजीहात में मुसाफिरों और ट्रेनों की बहिफाजत आमदरफ्त के अलावा ट्रेनों को शेड्यूल के मुताबिक चलाना है। उन्होंने मजीद बताया कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में तकरीबन तमाम सहूलतें दस्तयाब हैं। महकमे औज़ान व पैमाइश के अहदेदारों ने कराची बेकरी वाक़े मौज़म जाही मार्केट का अचानक मुआयना किया और धावे में नापतोल और MRP कीमतों में कई शिकायतों को नोट करते हुए मुकदमात दर्ज किए। अहदेदारों ने बताया कि महकमे के IG गोपाल रेड्डी की हिदायत पर त्यौहार से कबल बेकरी अशिया के मेयार और वज़न और कीमतों का जायज़ा लेने के मकसद से ये मुआयना किया गया, जो 2 घंटों तक जारी रहा। उन्होंने बताया कि केक्स के वज़न में फ़र्क पाया गया और कई अशिया पर MRP दर्ज नहीं था। हमारा IG साहब गोपाल रेड्डी साहब के ऑर्डर्स के ऊपर हम आए थे। एक क्रिसमस के बारे में ज़्यादा सेल ये बेकरीज में होता, इसीलिए वहाँ डेट डाल रहे और MRP डाल रहे, बराबर वेट तोल रहे नहीं तोल रहे बोल के हम इंस्पेक्शन करने को आए थे। इसमें थोड़ा अभी तक 8 केसेस करे थे। ये शार्ट पेमेंट के बारे में नहीं है तो ऐसा डिक्लेरेशंस नहीं दिए, MRP डिक्लेयर करना, डेट ऑफ पैकिंग डिक्लेयर करना और वेट नेट वेट कितना है वो भी डिक्लेयर करना, वो जो नहीं है इसके ऊपर हम केसेस बुक कर रहे हैं। अभी स्पेशल ऑपरेशन पुलिस ने 4 रहजनों को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर SOT पुलिस गोवर्धन रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए घटकेसर के इलाके में नरेश, जगन, सुरेश और लिंगम को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि ये चारों रात के औकात में लोगों को लिफ्ट देने के बहाने मोटरसाइकिल पर बिठाया करते और तिलाई जेवरात और नकद रकम और दीगर अशिया लूट लिया करते थे। SOT पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अफराद के कब्जे से 2.5 लाख रुपए मालियती तिलाई जेवरात, नकद रकम के अलावा 4 सेल फोन्स बरामद कर लिए। महकमे सिविल सप्लाईज के इलाकाई विजिलेंस इन्फोर्समेंट सेल ने याकूतपुरा छावनी में एक गोदाम पर धावा किया, जहां अवामी तकसीमी निज़ाम के तहत जारी करदा अजनास का गैर कानूनी ज़ख़ीरा किया हुआ था। एक शिकायत पर सोनी मल्ला देवी की क़ियादत में इंस्पेक्टर्स नागेश्वर राव और संतोष कुमार ने धावा करके अजनास की गैर कानूनी मुंतकिली का पता चलाया। अहदेदारों ने बताया कि चावल के 300 थैले, गेहूं के 43 बैग्स और शक्कर, दाल और दीगर अजनास पड़ोसी रियासत को मुंतकिल करने की तैयारियां की जा रही थी। इस गैर कानूनी इक़दाम का सरगना मोहम्मद जाफ़र उर्फ सलीम बताया गया है। विजिलेंस की टीम मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। इन्फॉर्मेशन आया था चौनी एरिया में, ये ओल्ड सिटी में चौनी का एरिया में रेन बाजार पुलिस स्टेशन के अंदर मोहम्मद जाफर अलिया सलीम बोल के ये पीडीएस राइस इलीगली सप्लाई कर रहा बोल के बाहर मार्केट को बेच दे रहा बोल के इन्फॉर्मेशन आया था। आज हमारा टीम RVO रीजनल विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट ऑफिसर श्रीमती सोनी बाला देवी का अंडर में हम लोग इंस्पेक्टर्स आके रेड करे थे। आज 300 थैले का चावल मिले थे और गेहूं मिले थे 43 बैग्स का और दाल था और छोटा आइटम्स भी था। इसके ऊपर क्रिमिनल केस बुक कर रहे थे। इसके ऊपर CCS पुलिस ने जाली दस्तावेजात के जरिए गोल्ड लोन हासिल करने वाले श्री राम सिटी यूनियन फाइनेंस हिमायत सागर ब्रांच के 3 अहदेदारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने A श्रीकांत, MB मैसूरा शिवा रेड्डी और वीना श्रीकांत को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि ये तीनों कंपनी के मौजूदा ग्राहकों के प्रोफाइल्स और शिनाख्ती कार्ड्स हासिल करके कंप्यूटर के जरिए रस्मी काम मुकम्मल करते और ख़ुद ग्राहकों की दस्तखत करके बग़ैर सोना जमा करवाए कर्ज हासिल कर लेते थे। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारशुदा अफराद नवंबर 2012 से मज़कूरा फाइनेंस कंपनी को 1.25 करोड़ रुपए का चूना लगा चुके हैं। पुलिस ने बताया कि इसका इंकशाफ ऑडिटिंग के दौरान हुआ, जिस पर कंपनी के जिम्मेदारों ने पुलिस को इत्तला दी।
حیدرگڑھ چوراہے کے پاس ڈی سی ایم کی ٹکر سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب ڈی سی ایم کا ڈرائیور جو نشے کی حالت میں تھا سڑک پر جا رہی موٹر سائیکلوں کو ایک کے بعد دیگر ٹکر دے دی۔ اس واقعے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ راجندر نگر پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے اور نامعلوم شخص کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ سڑکوں کی خستہ حالت کا نوٹ لینے اور کانٹریکٹرز کے کاموں میں پیش رفت کا جائزہ لینے کمشنر بلدیہ کو جی ایچ ایم سی کی ہدایت۔ چھاونی نادر علی بیگ میں اجناس کے گودام پر سول سپلائز ویجیلنس ٹیم کا دھاوا، اجناس کی غیر قانونی منتقلی کا انکشاف۔ کراچی بیکری موزم جائی مارکیٹ پر محکمہ اوزان و پیمائش کے عہدیداروں کا دھاوا، مقدمہ درج۔ اور جعلی دستاویزات کے ذریعے گولڈ لون حاصل کرنے والے فائنانس کمپنی کے 3 عہدیدار گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ امان اللہ۔